Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. So I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to analyze the Hindu newspaper for 1st September 2020. आज हम 1st September 2020 का हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करने जा रहे हैं. And in today's class, I'm going to also give you one question as homework. आज की क्लास में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे मिलेगा and two questions we are going to solve in the class itself, right? And you all know that you can also download the PDF of this class on my Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease. You will find the link of the channel in the description box given below. You can also search the channel on Telegram, Simplifying UPSC with Ease, right? तो आपको क्लास के जो रिसोर्स हैं, नोट्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टेलीग्राम पे मिल जाती हैं. Also you can follow us on Twitter and you can follow us on Instagram now. The page name is Arpita Sharma Classes. Instagram पे अर्पिता शर्मा क्लासेस पेज का नाम है, जहां पर आप हमारे फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स को डाउनलोड कर सकते हो, right? Before starting the class, here's a small announcement. I'm also taking live classes on Unacademy Plus. And to get 10% discount on Unacademy Plus subscription, you can use code Sharma20. Unacademy के Plus subscription पर आपको 10% easily discount मिल सकता है अगर आप ये code Sharma20 use करते हैं तो, ठीक है? Now coming on to the first homework question. ये आपका आज का homework question है. This question I have taken from 2019 prelims question paper. Consider the following statements. Most of India's external debt is owed by government entities. All of India's external debt is denominated in US dollars. So which statement is correct? कौन सा statement correct है? You have to carefully read the statements and then answer in the comment section. This is the part of your homework for today. Okay. Now let's analyze the newspaper for today. GDP falls 23.9% in first quarter. So a survey has been published by National Statistical Office, that is NSO, wherein the survey says that GDP of this year has been contracted by 24% in the first quarter. Now if we compare the first quarter of 2020 with the first quarter of 2019, in 2019 there was a growth of 5%. But in 2020, the GDP has come down. It has contracted by 24%. अप्रैल जून जो 2020-21 का जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, उसमें जीडीपी श्रिंक हो गया है. वहीं अगर हम पिछले साल का जीडीपी देखें इसी सेम टाइम पीरियड में, तो वो 5% बढ़ा था. सो इट इज बीइंग सेड बाय द मेनी इकोनॉमिस्ट दैट द इंडियन इकोनॉमी is seeing its worst contraction in decades. GDP जो है ये जो 23.9 around 24% नीचे गिर गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा गिराव है जो हमें देखने को मिला है इस साल. एंड फर्स्ट टाइम इंडिया हैज रिकॉर्डेड दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन क्वार्टरली जीडीपी डेटा सिंस इट स्टार्टेड पब्लिशिंग जीडीपी डेटा ऑन क्वार्टरली बेसिस सिंस 1996. पहली बार हुआ है 1996 से अब तक जो हमने 24% का गिराव देखा है. पहली बार हुआ है ये. दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस सिंस 1996. सो रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स के लिए आपको एक बात याद रखनी है कि 1996 में हमने सबसे पहली बार जीडीपी को क्वार्टरली बेसिस में कैलकुलेट करना शुरू किया था. वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग जीडीपी ऑन क्वार्टरली बेसिस for the first time since 1996. ठीक है? And India has seen contraction in GDP for the first time in last 41 years since 1979. And it is being also said by the economists that India is among economies worst hit by pandemic. COVID-19 के वजह से जो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं इकोनॉमीज, उनमें से इंडिया एक है. So UK GDP shrunk by 20.4%, माइनस साइन है इधर. मलेशिया डिक्रीमेंट देखा गया है, कॉन्ट्रैक्शन 17.1%, यूएस 9%, रशिया 8.5%. बट सरप्राइजिंगली इन चाइना देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ 3.2%. कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इंडिया, यूके, मलेशिया, यूएस, रशिया में फिर भी डिक्रीज देखने को मिला है, डिक्रीमेंट देखने को मिला है. बट चाइना में ग्रोथ देखने को मिली है 3.2% की. Right. Now the question comes, first let us understand the basics. Basics समझ लेते हैं that how this GDP affects us and how it gets shrunk. ये shrunk कैसे हो जाती है, ये कैसे इतनी कम हो जाती है. What are the reasons of present economic slowdown? अभी जो economic slowdown आप देख रहे हो इकोनॉमी में, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? See, this is the cycle in our economy. ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की ना साइकिल होती है. इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंजम्पशन. Now, investment is the driver of economic growth. That means if investment increases, production increases. When production increases,
job creation increases. When there is job creation, export also increases, right? देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ती है तो जॉब बनती है, जॉब की पोजीशंस बनती हैं, वो बनती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है. एंड व्हेन ऑल ऑफ दीज इंक्रीजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो इंक्रीजेस. हाउ? बिकॉज द वेजेस ऑफ लेबर विल इंक्रीज, एंड व्हेन वेजेस ऑफ लेबर विल इंक्रीज, डिस्पोजेबल इनकम विद अ पर्सन विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम, सेविंग्स करने के बाद इनकम बचती है तो क्या करोगे, right? If your disposable income is increasing, what you will do? You will increase your consumption. आप अपनी consumption increase करोगे. When consumption will increase, investment will increase, investment will increase, economic growth, then this cycle will go on. ये नॉर्मल साइकिल होता है, राइट? एंड टू सस्टेन द इकोनॉमी वी हैव टू फोकस ऑन दिस साइकिल. अगर हमें इकोनॉमी को सही तरीके से बनाकर रखना है, सुचारू रूप में उसे हमें चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस साइकिल को बनाकर रखना पड़ेगा ना, right? So this contraction reflects the severe impact of COVID-19 lockdown. Because of the lockdown, there was large scale migration. The construction sector was largely hit. आपने देखा था कितना ज्यादा लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा था, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर बुरी तरीके से चौपट हो रहा था, राइट? सो फर्स्ट रीजन इज दिस लॉकडाउन. पहला रीजन होता है कोविड-19 पैंडेमिक, उसके वजह से जो लॉकडाउन लगा है, right? Usually impact of either increase or decrease in investment on GDP growth is seen after a period of 4 years. ठीक है, अगर मान लो कहते हैं हम GDP इंक्रीज हुई है तो उसका इम्पैक्ट हमें 4 साल के अंदर देखने को मिलेगा. GDP कम हुई है तो उसका असर भी हमें 4 साल के अंदर देखने को मिलेगा. एंड दिस इम्पैक्ट और दिस पीरियड ऑफ 4 years is known as lagged effect of investment on GDP growth rates. And just like the lagged effect of investment, there is a lagged effect of economic growth on consumption also. Economic growth का जो lagged effect है ना, वो consumption पे भी देखने को मिलता है. Because the impact of increase or decrease in GDP growth, it is seen in consumption also, and that is seen in a period of 2 to 3 years. Investment पे जो impact देखने को मिलता है GDP के बढ़ने गिरने का, वो 4 साल के पीरियड में देखने को मिलता है. बट कंजम्पशन पे जल्दी 2 से 3 साल के अंदर ही इम्पैक्ट दिखने लगता है. एंड इट इज सेड बाय द इकोनॉमिस्ट ऑल्सो एंड दिस सर्वे ऑल्सो दैट सिंस 2012 to 13 ओनली इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड टू डिक्रीज. ये अभी कोविड-19 का पूरा हम श्रेय कोविड-19 को नहीं दे सकते. इस स्टैग्नेशन का, इस कॉन्ट्रैक्शन का श्रेय जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को भी, जो कि 2012-13 से घटती ही चली जा रही थी, राइट? So this is the comparison in investment rates between 2011-12 and 17-18. As you can see, in 11-12 household sector जो है, जो कि माना जाता है major component investment का, 16%. But 17-18 it decreased 10 to 10.5%. Private corporate sector investment 11%, but it was same in 17-18 also. Public sector investment also was same in both the periods. So total investment rate it came down, but जो total investment rate है ना, ये household sector के घटती हुई इन्वेस्टमेंट की वजह से टोटल रेट भी कम हो गया. सो व्हाई द हाउसहोल्ड सेक्टर द इन्वेस्टमेंट्स केम डाउन एंड व्हाई देयर वाज स्टैग्नेंट stagnancy which was seen in private corporate sectors investment. देखो, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में देयर वाज ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम, द एनपीए प्रॉब्लम. बट इन हाउसहोल्ड सेक्टर, हाउसकीपिंग इन 2014 ऑफ बैंक्स वाज स्टार्टेड बाय आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन. सो हियर द बैंक्स वर इन द स्टेट ऑफ कंप्लीट शैम्बल. व्हाई? बिकॉज दे वर रिलक्टेंट टू गिव मोर लोन्स बिकॉज ऑफ द एनपीए इश्यूज. एनपीए इश्यूज तो 2012 से बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से बैंक्स जो हैं वो लोन्स देने में आनाकानी करती थी, जिसकी वजह से हाउसकीपिंग ऑफ बैंक्स स्टार्ट किया आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी ने. दिस इज ऑल्सो द सीन. देखो, अब लोन नहीं मिलेगा तो हाउसहोल्ड सेक्टर कंस्ट्रक्शन में जाकर, रिटेल हाउसिंग में या फिर आपके कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? वहां नहीं कर पाएंगे. रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं. जब लोन ही नहीं मिलेगा तो रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? सो दिस वॉज द सिनेरियो. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पर आते हैं. पीएलए अग्रेशन ब्लॉक्ड एट Pangong Tso. So Chinese army has attempted to violate the status quo around LAC, that is line of actual control, and they have attempted to control areas along the LAC, along the southern bank of Pangong Lake. So about Pangong Lake we have studied a lot. हमने Pangong Lake के बारे में तो काफी बार पढ़ा है, right? It's a brackish water lake. So this is in violation of consensus of maintaining status quo that was reached during the recent military and diplomatic talk. अभी पिछले कुछ महीने में हमने देखा था ना कि इंडिया और चाइना दोनों ने ही डिप्लोमेटिक मीटिंग्स करी हैं, राइट? बट उस मीटिंग के बावजूद भी चाइना ने ये एक्ट कर दिया. आफ्टर दैट मीटिंग ऑल्सो, आफ्टर दैट डिप्लोमेटिक सेशन ऑल्सो, चाइना अगेन ट्राइड टू कंट्रोल द एरियाज अलोंग द LAC. क्या फायदा हुआ
बातें करने का, बट इट इज बीइंग सेड दैट दीज डिप्लोमेटिक टॉक्स वर अ काइंड ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम चाइनीज साइड. चाइना इंडिया को भटकाना चाहता था बिकॉज दे वर इंडल्जिंग इन दीज डिप्लोमेटिक टॉक्स एंड सीक्रेटली चाइना वॉज बिल्डिंग अप, यू कैन से, आप बोल सकते हो जो अपना कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, वो कर रहा था चाइना नियर दी डीप सैंग, ओवर हियर डीप सैंग प्लेन. ये जो डीप सैंग प्लेन है ये हाईएस्ट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस माना जाता है इंडिया के लिए. दिस डीप सैंग प्लेन इट इज कंसिडर्ड, इट इज सेड दैट इट हैज हाई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया, राइट. एंड द दौलत बेग ओल्डी रोड जो इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, दिस पर्टिकुलर रोड विच इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग, इट इज सेड दैट डीप सैंग जो आपका प्लेन है ये इसी रोड पर है. इट कट्स थ्रू दिस पर्टिकुलर प्लेन एंड दिस रीजन इज वेरी क्लोज टू LOC. So while we were indulged in diplomatic talks now with China, they were trying to construct illegal, you can say, buildings and illegal settlements over here so that they can access easy entry in India, right. तो एक तरीके से भटकावा था जो हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी चाइना की तरफ से. एंड दिस डीप सैंग प्लेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. It is the only plane in the region, only region where tank maneuvering is possible, and even in 1962 war between India China now, the tanks were used in this region only. And it is also one, very important. Why? Because the distance between Siachen Glacier and Deep Sang Plain is roughly around 70 kilometer. सियाचिन ग्लेशियर तो हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल है, राइट. चाइना और इंडिया उसी को लेकर लड़ते हैं, तो 70 किलोमीटर का ही फासला है. सो इट्स वेरी वेरी क्लोज, राइट. नाउ ओवर हियर यू कैन सी दिस इज द पैंगोंग लेक. अब पैंगोंग लेक के बारे में खासियत क्या है आप इधर देख सकते हो, राइट. दिस इज द पैंगोंग लेक. ये आपकी पैंगोंग लेक है, ठीक है. मैंने आपको जो बनाकर दिखाया ना, दिस इज द पैंगोंग लेक, ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी दैट इट इज ऑन दी LAC. किस पर है ये? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है. इट इज अ ट्रांसनेशनल ब्रैकिश वाटर लेक. दैट मीन्स 1/3 ऑफ पार्ट ऑफ दिस लेक इज इन इंडिया एंड 2/3 पार्ट ऑफ दिस लेक इज इन चाइना. इसका 1/3 हिस्सा इंडिया में है और 2/3 हिस्सा चाइना में है. तो ये ट्रांसनेशनल ब्रैकिश वाटर लेक है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्रैकिश वाटर? ब्रैकिश वाटर लेक का मतलब होता है कि इसका पानी थोड़ा खारा होता है, सॉल्टी होता है. इट गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम नियर बाय ग्लेशियर. जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, माउंटेन ग्लेशियर्स, वहां से इसको पानी मिलता है. बट देयर इज नो वे आउट फॉर द वाटर. एक बार कलेक्ट हो गया तो हो गया, निकलने का रास्ता नहीं है. तो ये एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है. सॉल्टी वाटर इट गेट्स एक्यूमुलेटेड एट वन पॉइंट. प्लस इट इज नॉन नेविगेबल, राइट. तो अगर यहाँ पर आसपास चाइनीज सेटलमेंट्स बन जाती हैं तो ये लेक के थ्रू इंडिया में एंटर कर सकते हैं, राइट. तो दिस इज द प्रॉब्लम ओवर हियर. एंड इन दिस पैंगोंग लेक, ये जो यहाँ पर पैंगोंग लेक है ना, हियर इन द नॉर्थ साइड ऑफ द पैंगोंग लेक यू विल फाइंड दीज रिजेस. ये आपको रिज देखने को मिलेगा एंड यू सी इट इज लाइक अ फिंगर. ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फिंगर्स जैसे स्ट्रक्चर है, राइट. दिस इज लाइक फिंगर्स, उंगलियां जैसे बन रही हैं. देयर आर 8 स्ट्रक्चर्स, 8 ridges you can say, right. So Chinese have been shifting westward after the 1962 war. यहाँ पर आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है. 8th ridge जो है ना इसका, the 8th ridge, here you have the line of actual control and China is trying to shift its area. इस तरीके से आगे बढ़ रहा है. Like this it is trying to move forward. It wants to control this area. ये जो चौथा रिज है ना, यहाँ से ये जो एरिया है ये इंडिया में आता है. दिस एरिया इज इन इंडिया बट चाइना वांट्स टू कंट्रोल दिस. दैट इज व्हाई चाइनीज हैव बीन शिफ्टिंग वेस्टवर्ड. दैट इज व्हाई पैंगोंग लेक कंट्रोवर्शियल है. इट इज द रीजन व्हाई पैंगोंग लेक इज कंट्रोवर्शियल, ठीक है. Now another news you can see, China controls 1000 square kilometer in Ladakh. So Chinese have been controlling around 1000 square kilometer of land in Indian territory and they are targeting the plains. जो Indian territory में LAC के आसपास जो plains है ना, for example this Deep Sang plain, they are trying to control those and the plains have very strategic you can say significance in the warfare. So they have so far controlled 65 square kilometer in Pangong Lake, 20 square kilometer in Chushul Valley, 12 square kilometer of area of Hot Spring. Then the next is 20 square kilometer of area in Galwan Valley, 900 square kilometer of area in Deep Sang Plain. Total 1000 square kilometer they are controlling, right. They are trying to control. Now coming on towards the next important news. Now as we all know, Pranab Da has passed away. Ex-President Pranab Mukherjee, he passes away. Basically questions on the presidents, they are when did they pass away or when they were born, ऐसे questions नहीं आते हैं. But yes, in 2009 in prelims there was a question. 2009 में prelims में question था, among the following presidents of India who was also the Secretary General of Non-Aligned Movement for some period.
Dr. Shankar Dayal Sharma, Sarvepalli Radhakrishnan ji, Varagiri Venkatgiri ji, Gyani Jail Singh. So the correct answer is D. Correct answer is question का D. ठीक है. Now about our ex-president Pranab Mukherjee ji. He has been awarded Padma Vibhushan in 2008. He is the 13th president of India from 2012-17, and before that he was the Union Finance Minister also from 2009 to 2012. And he also served on board of governors of the World Bank. Very important achievement. इसको लिख लेना. He was awarded highest civilian honor Bharat Ratna also in 2019. 2019 में last year इनको भारत रत्न award भी मिला था. Right? Now coming on towards the questions, test questions for today. You have to answer these questions in the comment section. Chairman of public sector banks are selected by Banks Board Bureau, Reserve Bank of India, Union Ministry of Finance, Management of Concerned Bank. One of the most easiest question, ये रोज न्यूज़पेपर में आता है, पेज 15 हिंदू न्यूज़पेपर में, इकोनॉमिक सेक्शन में. Very easy question. You have 5 seconds time to answer this question. The correct answer to this question is A. A is the correct answer. Banks Board Bureau. Next question. The service area approach was implemented under the purview of Integrated Rural Program, Lead Bank Scheme, MGNREGA or National Skill Development Mission. Again this question, यही question same to same नहीं आया था, but yes, this question was twisted and it was asked in 2019 pre. इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था. करेक्ट आंसर इज लीड बैंक स्कीम. सो इन 2019 अ क्वेश्चन केम इन लीड बैंक स्कीम. 2019 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था लीड बैंक स्कीम के ऊपर. ठीक है, तो आपको ये प्रिपेयर करना है. यू नीड टू प्रिपेयर इट. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड टुडेज सेशन. आप उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो. इफ यू रियली आर एंजॉइंग दीज सेशंस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, share this video with as many aspirants as you can, and also subscribe to this channel if you haven't yet. Thank you.